Good morning, students. So today we are going to start with the chapter 5th, that is cell, the basic unit of life, or you can say the fundamental unit of life. Till now you have studied 3 chapters, and all these 3 chapters that comes under the portion of chemistry, that is matter in our surrounding, is matter around us is pure, and atoms and molecules. Now we will study about the biology part. Okay, so we will cover 1 or 2 chapters from this, and then we will cover some chapters from the this physics also. Okay, so today we will study about the 5th chapter about the cell, that is basic unit of life or the fundamental unit of life. So the first thing comes that who discovered the cell. Okay, so in 8th standard you have already studied that Robert Hooke was the scientist who studied the who discovered the cell. Okay, so cells were first discovered by Robert Hooke in 1665. Okay, so this thing you know, and I think you remember from last year also. So he observed a thin slice of cork under his self-designed microscope. Okay, so he took a slice of cork and he observed that under his उसने अपनी आप से एक मतलब अपने सेल्फ डिज़ाइन में समझ रहे हो ना आप, तो सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप था उसका, उसके अंडर उसने ऑब्जर्व किया था, लेकिन उसकी इतनी मैग्नीफिकेशन नहीं थी कि वो छोटी पार्ट्स को भी या अदर थिंग्स को भी वो ऑब्जर्व कर सके. लेकिन फिर भी उसने जब कॉक को उसकी स्लाइस को उसके अंदर ऑब्जर्व किया, ठीक है, रखा, तो he found that this slice of cork resembles the structure of honeycomb, which consists of small compartments. You know, honeycomb is like it is having small compartments, and he observed that the same compartments were there in this slice of cork. So he named these compartments as cells. Okay, so he gave the name of these compartments as cell. Okay, so this was his self-designed microscope, right? So Robert Hooke observed, okay, what did he? So this was the type of cork. Cork comes from the bark of the tree. So you know now what is a bark? Bark means outer covering of the tree. Okay, so from that outer covering we made the cork, and then he took a single slice of very thin slice of this cork, and he observed that under the microscope like honeycomb. So honeycomb is like this, small compartments are there. So he observed that this slice under the microscopes, he also observed that these are such type of small compartments were there in this slice of the cork. So that is why he named these compartments as cell. Unicellular organisms, amoeba, chlamydomonas. ठीक है, तो आपने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा है दैट यू नो सिंगल सेल्स होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर. तो सिंगल सेलुलर को हम यूनिसेलुलर भी बोलते हैं. तो you know that the single cell may constitute a whole organism. ठीक है, at that time it is not known that single cell may constitute a whole organism. ठीक है, for example amoeba, chlamydomonas, paramecium, bacteria, they are single celled organisms, and this single cell constitute the whole organism. ठीक है, so these organisms are called unicellular because उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे जो माइक्रोस्कोप थे वो इतने स्मॉल और इतने उसको वो डिस्कवर नहीं कर पाता था, इसीलिए बीच में 100 ईयर्स और इतना जो था उस बीच में इस सेल के रिगार्डिंग कोई भी डिस्कवरी नहीं हो पाई थी. ठीक है, सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें सिंगल सेल होता है, तो उसमें उसके एग्जांपल्स हैं अमीबा एंड क्लामिडोमोनास, राइट. पैरामीशियम इज ऑल्सो, बैक्टीरिया is also, they are also single cellular or unicellular, we can call. On the other hand, many cells they group together, ठीक है, to form a single body, right, and they perform different functions in that body.
So these are known as the multicellular organisms. So you can see the examples, animals. So animals don't constitute the animal and birds only. Animals mean we human beings also. They also come under the category of animals. So whenever you will generally use this word as animal, cell, animal. So animal mean human being also included in that category. Fungi, that is also multicellular. Plants, they are also multicellular. So these are the examples of multicellular organisms. You have already studied about these in your 8th standard, so that is I'm not going to in that much deep. Unicellular means they are having the single cell, right? And multicellular means they are having many cells in their body, right? So some organism can also have cells of different kinds, ठीक है? So different cells in human body के बारे में बात करें, so what are the different cells, ठीक है? This also you have gone through nerve cells, and इनको हम क्या बोलते हैं, branched cell भी बोलते हैं, right? Fat cell are like this. So these all the cells are present in human body, but you can see the different shapes, right? These are bone cells, sperm, blood cells and ovum, right? So these are the different cells in human body, ठीक है? बोन सेल, ब्लड सेल्स, एक और आता है स्पिंडल शेप, दैट इज मसल सेल, ठीक है? यू हैव गॉन थ्रू अबाउट दैट इन योर 8th स्टैंडर्ड. नर्व सेल्स, आपको क्वेश्चन भी आता है, विच सेल्स आर ब्रांच्ड, सो यू कैन सी नर्व सेल्स. what is the shape of blood cells, it is spherical, ठीक है? So these are the different cells which are present in the human body, ठीक है? So एक थोड़ी चीज़ें और रिकॉल कर लेते हैं इसी में. cells like amoeba, they have the changing shapes, ठीक है? What I told, they are more unicellular. So amoeba changes its shape regularly, ठीक है? And some may have fixed shape also, ठीक है? But you might have one general knowledge question or 1 marks question that which organism change its shape, ठीक है? So you can see that amoeba which is unicellular, that keep on changing its shape, ठीक है? Each living cell has a capacity to perform certain basic functions, right? So what we are saying, our body is made up of cells, ठीक है? So each living cell have the capacity to perform certain basic functions, ठीक है? Now what this cell is, अब इसको थोड़ा सा डायग्राम में चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? सेल का थोड़ा सा रिकॉल करें 8th स्टैंडर्ड से, आपने इसमें थोड़ा सा बेसिक चीज़ें देखी. दैट सेल इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेन बेसिक थिंग्स, दैट वाज सेल वॉल, देन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है? ये 3 चीज़ें आपने पढ़ी थी 8th स्टैंडर्ड में. एंड हमको पता है साइटोप्लाज्म के अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, और वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं. कुछ जो चीज़ें होती है दैट आर इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है? तो वो हम अब डिटेल में पढ़ेंगे इस स्टैंडर्ड में, राइट? सो सेल के अंदर क्या क्या होता है, देखो पहले तो सेल होता क्या है. द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शंस, ठीक है? जैसे कैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स दे आर मेड अप ऑफ टिश्यूज, एंड टिश्यूज दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल हार्ट है हमारा, ठीक है? हार्ट दैट पंप ब्लड इन आवर बॉडी. Stomach है that help in digesting the food, right? So these different organs have their different function in our body, ठीक है? So cells also has got certain specific components within it, so these are known as cell organelles, ठीक है? So such as making the new material in the cell, clearing up the waste material from the cell. So different function that the cell have to, these organelles, these components have to perform within the cell, ठीक है? So अब हम देखेंगे what this cell is made up of, what is the structure of structural organization of a cell, ठीक है? So you can see here cytoplasm, this is not given in the, so this jelly like structure which is present in the cell is known as a cytoplasm, that is present somewhere in this blank space, ठीक है? This is your nucleus,
and endoplasmic reticulum, this red one, Golgi apparatus, this blue one, and this is a cell membrane. Obviously you know this, the boundary of this cell is known as cell membrane. Then this is these are ये black spots हैं, these are the ribosomes and these are mitochondria. ठीक है, so mitochondria, you know, this is the powerhouse of the cell. ठीक है, एंड व्हाट इज साइटोप्लाज्म, ये जो जिसमें ये प्रेजेंट है सारे, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म, गोलिया, जिस चीज़ में ये प्रेजेंट हैं उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट इन द सेल. सो अब आप इसको डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे. ठीक है, लेट्स हैव सम मोर डिटेल अबाउट दिस सेल. ठीक है, द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म. अब सेल का शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है, ठीक है, सो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द फंक्शन दे परफॉर्म. ठीक है, दैट इज रिलेटेड विद द फंक्शन दे परफॉर्म. Each living cell has a capacity to perform certain basic functions. ठीक है, cell contains a specific components called organelles. ठीक है, जिस कौन कौन से बताए मैंने आपको, जो अभी इस पिक्चर में हमने देखे. ठीक है, मिटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ठीक है, देन गोल्गी apparatus, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट. सो ऑल दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेल. तो इसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स. Each kind of cell organelle perform a special function. तो ये जो सभी जो organelles हैं, तो अब जब भी हम word use करेंगे organelles, it means components of the cell. So each organelle that perform a special function in our body. ठीक है, all cells are found to have the same organelles irrespective of their function and which organism they are found in. ठीक है, अब आता है हमारे पास फर्स्ट, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो मेम्ब्रेन से बहुत सिंपल सी ये है, इसमें ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. जो सेल की जो आउटर बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, वी विल यूज़ द सब्स्टिट्यूट वर्ड फॉर सेल मेम्ब्रेन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, नो डाउट सेल वॉल इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, but plasma membrane and cell membrane, they both are same. ठीक है, now see, it is the outermost covering of the cell that separates the content of the cell from the external environment. ठीक है, समझ में आ गया. what we said that our body is made up of different type of cells. तो अब ये जो एक सेल होता है, ठीक है, सेल की एक कवरिंग होती है, तो वो कवरिंग उसको उसके बाहर के एनवायरनमेंट से, बाहर के एनवायरनमेंट ये नहीं कि हम ह्यूमन बींग्स और हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर, उस टेम्परेचर से, उस एनवायरनमेंट से नहीं, जो हमारी बॉडी के अंदर ही उसका जो अपना एक स्ट्रक्चर है सेल का, ठीक है, उससे उसको दूसरे, उसके बाहर जो भी चीज़ें हैं उससे उसको वो सेपरेट करती है. ठीक है, सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल. ठीक है, और क्या काम करती है सेल मेम्ब्रेन, जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं सेल को उनको अंदर आने देती है, लेट देम एंटर इन द सेल, और जो चीज़ें अंदर वेस्ट हैं उनको वो बाहर करती है. सो दैट इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटीरियल एंड इज़ देयरफॉर कॉल्ड इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या, कि जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको ही सेल के अंदर आने देती है. ठीक है, और जो लिखा ना, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, तो जिसकी ज़रूरत नहीं है बॉडी में उनको प्रिवेंट भी करती है, प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स इन द सेल. ठीक है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. The plasma membrane is flexible and is made up of organic molecules like proteins and lipids. अब ये जो membrane होती है किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है. ठीक है, फ्लेक्सिबल समझो, थोड़ी इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है, एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. ठीक है, सो इन सब चीज़ों से ये मिलकर बनी होती है. ठीक है, यू कैन सी हियर
this green color, here written as cell membrane. ठीक है. सो पिछली अगर आप स्लाइड देखो तो उसमें जब मैंने आपको सेल का स्ट्रक्चर दिखाया था, सो आई टोल्ड यू मैनी थिंग्स, दैट इज दिस इज न्यूक्लियस, दीज आर गोल्गी apparatus, दी स्मॉल डॉट्स विच आर प्रेजेंट दे आर राइबोसोम्स. ठीक है. और ये जो बीच का येलो पोर्शन है, देखो यहाँ पे एरो भी लगाया है, ये येलो पोर्शन जो है दैट इज साइटोप्लाज्म. ठीक है. ये सेल वॉल है देखो, और ये जो ग्रीन कलर की दैट इज सेल मेम्ब्रेन, एंड ये जो पर्पल कलर में है, ये थोड़ा पिंकिश पर्पल है, मिटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इनमें क्या डिफरेंस है? एनिमल्स जो होते हैं उसमें सेल वॉल मिसिंग होती है. ठीक है. लेकिन सेल वॉल होती किस में है? सेल वॉल होती है प्लांट्स में. जो प्लांट का सेल होगा उसमें सेल वॉल होती है, बिकॉज इट नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर बाहर की टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेटिक कंडीशन, या फिर कोई भी तरह का जो चीज़ें हैं जिससे उसको प्रोटेक्शन चाहिए. तो दिस वॉल इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. ठीक है. सो सेल वॉल के अंदर आती है सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. अब डिफ्यूज़न पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका डेफिनेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ. नाउ जैसे होता क्या है, some substances are there like carbon dioxide or oxygen. ठीक है. they can move across the cell membrane. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है, they move across the cell membrane. ठीक है. सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न. ठीक है. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न. अब डिफ्यूज़न जो है ये ऑलरेडी आपने पिछले चैप्टर में केमिस्ट्री पोर्शन में पढ़ा था. ठीक है. होता क्या है? The movement of the substance from a region of high concentration to a region of low concentration. ठीक है. तो जब भी कोई चीज़ हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में जाती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न. ठीक है. अब होता क्या है कि जब हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, ठीक है, तो सम सब्सटेंसेस लाइक CO2 है, ठीक है, that accumulates in high concentration inside the cell. ठीक है. inside the cell the CO2 that accumulates in high concentration inside the cell, and in the cell's external environment the concentration of CO2 is low. ठीक है. सेल है, सेल के अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के बाहर जो है CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम है. ठीक है. तो क्या होगा? अब हमने क्या बोला, डिफ्यूज़न क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट करना. तो क्या होता है कि ये जो CO2 होती है, ठीक है, दैट मूव्स आउट ऑफ द सेल. तो बाहर क्यों जाएगी? बिकॉज अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो डिफ्यूज़न हो जाएगा उसका. तो वो दैट मूव्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन. तो जब ये CO2 सेल के अंदर से बाहर जाती है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न. ठीक है. तो डिफ्यूज़न एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ह्यूमन सेल्स में. ठीक है. ह्यूमन सेल नॉट बट सेल्स में. ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट द डेफिनेशन रिटन हियर. गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन. ठीक है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूज़न. ठीक है. तो ये चीज़ आपने देख ली. तो डिफ्यूज़न क्या करती है? जैसे हमारी बॉडी में मैंने आपको समझा दिया CO2 का एग्जांपल लेके. अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस.